کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش جس کا دوسرا سیمی فائنل آج کشمیر کے اندر نکیال کی وادیوں میں ہو رہا ہے۔ کشمیر کو جنت نظیر وادیاں کہا جاتا ہے اور آج اس کی خوبصورتی بھی آپ مدنی چینل پر دیکھ رہے ہوں گے۔ آج دوسرا سیمی فائنل ہے، ہمارے ساتھ دو ٹیمیں موجود ہیں۔ خیبر پختونخوا سے مانسیرا کی ٹیم آئی ہے جو مقابلے میں یہاں تک پہنچی ہے، اور میری بائیں طرف جہلم کے اسلامی بھائی ہیں۔ دونوں ٹیمیں بڑی شاندار ہیں، بڑے شاندار مقابلوں کو جیت کر وہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ اب ایک قدم دور ہیں فائنل سے، جو 31 دسمبر کو اسلام آباد جناح کنونشن سینٹر میں ہونے جا رہا ہے، اور فائنل جیتنے والوں کو ذہنی آزمائش سے الحمدللہ مدینہ پاک کی حاضری کا ٹکٹ پیش کیا جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بار کون سی ٹیم مدینہ ذہنی آزمائش جیت کر جاتی ہے۔ ویسے تو ہم نے یہ بھی ریت دیکھی ہے کہ جناب بعض اوقات جیت تو نہیں پاتے ہیں مگر بلاوا اس سے پہلے ہی آ جاتا ہے، کیونکہ وہ کہا جاتا ہے نا، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ آئیے ناظرین پروگرام کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ دونوں ٹیمیں میرے ساتھ ہیں، مانسیرا کے اسلامی بھائی اور جہلم کے اسلامی بھائی۔ آج آپ کو کچھ اسٹیج بھی یونیک سے نظر آ رہا ہوگا۔ میرے پیچھے کوئی وال نہیں ہے، کوئی ایس ایم ڈی نہیں ہے، بلکہ آپ خوبصورت درخت اور باغات دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال مقابلہ آگے چلتا رہے گا۔ سب سے پہلے ہم چلیں گے مانسیرا والے اسلامی بھائیوں سے، ان کا تعارف حاصل کریں گے۔ اپنے نام بھی بتائیں اور اپنے کام بھی بتائیں۔ الرحمن الرحیم، میرا نام محمد حمزہ نیاز اتاری ول نیاز محمد اتاری ہے۔ میں جامعۃ المدینہ فیضان میلاد کامرہ کے درجہ سادسہ یعنی 6th ایئر کا طالب علم ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ مجلس روحانی علاج کے تحت تحصیل سطح کا ذمہ دار بھی ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اگلے اسلامی بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام عبدالباسط بن خالد حسین، میں جامعۃ المدینہ فیضانی میلاد کامرہ میں درجہ سادسہ یعنی 6th ایئر کا طالب علم۔ ماشاءاللہ جی۔ اگلے اسلامی بھائی۔ الرحمن الرحیم، میرا نام حریرہ نزاکت بن نزاکت خان ہے، اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ G11 اسلام آباد میں 2nd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ ماشاءاللہ۔ جہلم کے اسلامی بھائیوں سے ان کا تعارف لیتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عبداللہ طاری بن محمد رزاق ہے، اور میں جامعۃ المدینہ میں 3 سال کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ جی۔ اگلے اسلامی بھائی۔ میرا نام محمد شفیق رضا طاری بن محمد رفیق اتاری ہے، اور میں جامعۃ المدینہ کے 3rd ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ جی۔ میرا نام محمد اویس رضا اتاری بن مدثر محمود اتاری ہے، اور میں جامعۃ المدینہ میں 5th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ جناب ناظرین آئیے چلتے ہیں۔ پہلا سیمی فائنل ہوا، شاندار سیمی فائنل ہوا، منڈی بہاؤدین میں ہوا۔ موسم کی سختی تو تھی مگر عوام کا جم غفیر بھی تھا۔ مقابلہ بڑا شاندار ہوا۔ آئیے، ایسا محسوس ہوتا رہا کہ ہم بادلوں میں بیٹھ کر یہ سلسلہ کر رہے ہیں، کیونکہ بڑی دھند تھی۔ منڈی بہاؤدین میں پہلا سیمی فائنل کیسا ہوا، کون سی ٹیم آگے گئی، کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ العلم نور، العلم نور۔
مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش اب داخل ہو گیا ہے سیمی فائنل کے مرحلے میں. جی ہاں، آج پہلا سیمی فائنل ہے. ہم موجود ہیں منڈی بہاؤالدین میں. کیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال کے وقت مسواک استعمال فرمائی تھی؟ وقت وصال میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک منہ میں مسواک چبا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وقت وصال مسواک شریف استعمال فرمائی کیا تھی. بات ہے، جواب درست دے دیا ہے. بوئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سونگھی. کسان لا کے کفس میں شکستہ بال کیا. جواب درست دے دیا ہے. نہ مجھ سا اب بیل بجائی ہے. ہلوال والوں نے یہ صحیح جواب انہیں بہت قریب کر دے گا اور غلط جواب. دوسری پڑھا لائن کیا ہے صاحب؟ نہ مجھ سا، میں نے صرف اتنا پڑھا ہے. دوسری لائن کا یہ صرف لفظ پڑھا ہے میں نے. تمہارے در تمہارے آستان سے میں کہاں جاؤں، نہ مجھ سے کوئی بے کس ہے نہ تم سے کوئی نہ والی مجھ ہے. سا کوئی بے کس ہے نہ تم سا کوئی والی ہے. جواب درست دے دیا ہے. Unbelievable جناب. ایک ٹیم اپنے نمبر خود کم کرتی ہے، دوسری ٹیم حاصل کرتی ہے. ایک نمبر کا فرق ہے. اب میرے پاس صرف سوال ایک ہے اور شعر بھی ایک ہے. اللہ پاک نے اللہ گجرانوالا والے کی کر رہے ہیں. اللہ پاک نے یہاں تک سوال سن کر بیل بجا دی ہے. یہ بتا دوں کہ اگر یہ جواب درست دے دیتے ہیں تو یہ فائنل میں پہنچ جائیں گے کیونکہ پھر 3 نمبر کا فرق ہو جائے گا. اور اگر یہ جواب نہیں دیتے ہیں تو پھر آخری سوال پر فیصلہ ہوگا. اللہ پاک نے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کن 2 قوموں کی طرف نبی بنا کر بھیجا؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ اللہ پاک نے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 قوموں کی طرف نبی بنا کر بھیجا. اس میں سے ایک اصحاب الائکہ اور دوسری اہل مدین. اہل مدین جن کو جو کہ چیخ کے عذاب کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، اور اصحاب الائکہ کے جن کو شام آنے والے دن کے عذاب میں ہوئے. ناظرین، اگر تو یہ سوال درست ہے، گجرانوالا والے فائنل میں پہنچ چکے ہیں. اور اگر یہ جواب درست نہیں ہے تو پھر موقع ہوگا بھلوال والوں کے فائنل میں پہنچنے کا، جو کہ آخری سوال فیصلہ کرے گا. کیا ہی اچھا ہو کہ اس سوال کے جواب میں آپ کو اگلے سوال میں بتاؤں گا. جس نے بیل بجائی ہے بھلوال والوں نے، اور لفظ صرف جس نے سنا ہے. یہ دوسری لائن کا پہلا لفظ ہے یہ جس نے. رزلٹ روک لیا گیا ہے، جلدی کیجئے، 3 سیکنڈ ہیں. اللہ 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 اللہ. ناظرین، یہ مقابلہ بڑے عجیب مرحلے میں چلا گیا ہے. اب بھلوال والے پہنچ گئے 40 نمبر پر، گجرانوالا والے 43 نمبر پر ہیں. اب مجھے اس سوال کا جواب دینا ہے، اور اس سوال میں گجرانوالا والوں سے غلطی ہو چکی تھی، مگر اس کے باوجود بھلوال والوں کی غلطی کی وجہ سے گجرانوالا والے فائنل میں پہنچ گئے. ہائے 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 ہائے، یہ کیسا کمال ہوا کہ اپنا جواب تو دوسری ٹیم نے نمبر تو نہیں حاصل کیے، پہلی ٹیم نے غلطی کر کے دوسری ٹیم کو آگے پہنچا دیا. بہرحال دونوں ٹیمیں بڑی کمال کی ہیں. آخری لمحوں پہ جا کر فیصلے ہو رہے ہیں. گجرانوالا والوں کو مبارک ہو. ذہنی آزمائش کے فائنلسٹ جو کہ 31 دسمبر کو جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہو رہا ہے، آپ سب کو دعوت دیتا ہوں. منڈی بہاؤالدین والوں، گجرانوالا والوں، آپ سب نے آنا ہے. پہلی ٹیم جو فائنل میں پہنچ چکی ہے وہ گجرانوالا ہے، اور دوسری فائنل میں ٹیم کیا جہلم ہوگی یا بانسیرا والے. آج کا دوسرا سیمی فائنل کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے؟ علم نور ہے، عشق کے بول، فیضان میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ. فقہی پہیلیاں درست کیجئے، حلال و حرام یہ مقدس مقام کون سا ہے؟ اور جوش کے ساتھ مگر ہوش سے آئیے ناظرین پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے.
नकियाल में मौजूद आशिकान रसूल जो बड़ी तादाद में यहाँ भी मौजूद हैं, मुझे तीनों फ्लोर भरे हुए नजर आ रहे हैं, दाएं बाएं पहाड़ों पर भी लोग बैठे हैं। ये अजब ज़हनी आजमाइश है जो मुख्तलिफ तरीकों से देखा जा रहा है, मगर मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि हर सवाल के जवाब में अल्लाह के जिक्र की नीयत से आपने बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहना है। जरा बताइए कैसे कहेंगे? इन दरख्तों को, इन फजाओं को अल्लाह के जिक्र का गवाह भी करते जाएंगे। आज तो सुभान अल्लाह, आसपास दरख्त कितने भले लग रहे हैं जनाब। एक बार सुभान अल्लाह कहेंगे, हर बार सुभान अल्लाह कहने पर जन्नत में दरख्त लग जाएगा। चलिए पहला सवाल करते हैं मानसेरा वालों से। वक्त विलादत हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जबान पर क्या जारी था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त विलादत हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ुबान मुबारक थोड़ी बहुत हिल रही थी तो कान लगा कर सुना गया तो अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आ रही है। क्या बात है, विलादत के वक्त गौसे पाक की जबान पर अल्लाह अल्लाह जारी था। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सर्दियों के दिन है, खांसी हो जाती है, लेकिन एक अजीब सी रिवायत, अजीब सी बात लोग कहते हैं, किसी को काली खांसी हो तो कहा जाता है इसे गधी का दूध या शराब पिलाई जाए। क्या शरन इसकी इजाजत है? अजीब व गरीब किस्म के लोग इलाज बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसको काली खांसी हो उसके बारे में ये मशहूर है कि उसको गद्दी का दूध पिलाया जाए या शराब पिलाई जाए। तो याद रखें कि ये दोनों चीज़ें हराम हैं। खांसी चाहे काली हो या सफ़ेद, इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी, काली खांसी या सफेद खांसी बल्कि कोई भी बीमारी हो, हराम चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या नाबालिग के पीछे नमाज पढ़ी जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाबालिग के पीछे सिर्फ नाबालिगों की ही नमाज होती है, बालिग की नमाज नाबालिगों के पीछे नहीं होती। बालिग की नमाज नाबालिग के पीछे नहीं होती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी वालदा का किस कदर अदब किया करते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सख्त सर्दी की रात आपकी वालदा ने आपसे पानी मंगवाया। जब आप पानी लेकर हाजिर हुए तो आपकी वालदा सो चुकी थी, तो आप पानी लेकर खड़े रहे कि जब वालदा उठें तो मैं उनको पानी पेश करूं। सख्त सर्दी की वजह से जो पानी है बर्फ़ हो चुका था और जो उंगली है वो पानी बर्तन के साथ चिपक गई थी। तो जब सुबह वालदा उठी तो उन्होंने कहा भाई यजीद ये क्या? तो उन्होंने कहा कि जब आपने रात को मुझसे पानी मंगवाया था तो जब मैं पानी लेकर आया तो आप सो चुकी थी, तो मैंने मुनासिब ना समझा कि आपको उठाया जाए, जब आप उठें तो मैं आपको पानी पेश करूँ। अल्लाह अकबर। आपने सारी रात सर्द रात में खड़े होना पसंद किया और फिर माँ ने हजरत बायजीद बिस्तामी के बारे में बड़ा कमाल का जुमला कहा, बड़ी प्यारी दुआ की कि अल्लाह मैं इससे राज़ी हूँ, तू भी इससे राज़ी हो जा। और अल्लाह ने फिर कैसी विलायत अता फरमाई, कितना बड़ा मर्तबा मिला। इस सवाल जवाब से सीखने को ये भी मिला कि माँ बाप का अदब जो है, माँ बाप की दुआएँ जो हैं वो बहुत सारे दर्जे तय करवा देती हैं, बड़े बड़े तूफ़ान टाल देती हैं। खुश नसीब हैं वो लोग जिनके माँ बाप उनके पास हैं। उनकी कदर कीजिए, उनकी दुआएं लीजिए और बरकतें हासिल कीजिए। जनाब सवाल है, बिल्ली पानी के बर्तन में मुंह डाल दे तो उस पानी को इस्तेमाल करना कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्ली अगर पानी में मुंह डाल दे तो उसका झूठा मकरू हो जाता है और उसे इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। पानी पाक होगा या नापाक होगा? पाक ही होता है लेकिन मकरू है, उसे इस्तेमाल करने से बचना। पानी उससे बचना मुनासिब है, मगर पानी नापाक नहीं होगा कि बिल्ली एक घरेलू जानवर है, अगर उसने पानी में मुंह डाला तो पानी जो है वो मकरूए तंजीही होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में हम बचपन से ही सुन रहे हैं कि वो मछली के पेट में गए और फिर उन्हें मछली के पेट से रब ने निकाला। वो मछली के पेट में पहुंचे किस तरह थे? शायद बहुत सारे नाजरीन को आज ये पता चलेगा कि ये वाकया क्या था इसके पीछे, हज़रत यूनुस कैसे मछली के पेट में पहुंचे।
حضرت یونس علیہ نبینا وسلم اپنی قوم کو عذاب کی وحی سنا کر اپنے شہر سے روانہ ہو گئے، حالانکہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں آیا تھا۔ پھر آپ ایک کشتی میں بیٹھے، وہ کشتی بیچ دریا ٹھہر گئی۔ انہوں نے کہا اس کشتی میں کوئی باغا ہوا غلام ہے۔ جب انہوں نے کوڑا ڈالا تو حضرت یونس کا نام نکلا، تو انہوں نے حضرت یونس کو دریا میں ڈال دیا، یوں آپ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ آپ دریا میں گئے تو اب مچھلی نے نگل لیا۔ ناظرین مگر حضرت یونس علیہ السلام کا رب پر بھروسہ دیکھیں، بہت بڑی مچھلی ہے، آپ اس کے پیٹ میں ہیں، اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا، مگر وہاں بھی رب کو پکار رہے ہیں، اور کن الفاظ سے پکار رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے باوجود اللہ کریم نے آپ کو زندہ سلامت پھر وہاں سے رہائی عطا فرمائی، اور پھر آپ کو دوبارہ گویا نئی زندگی ملی۔ علماء کہتے ہیں کوئی کتنی بڑی مشکل میں کیوں نہ ہو، کوئی کتنی بڑی پریشانی میں کیوں نہ ہو، اس کو ایسا کیوں نہ محسوس ہوتا ہو کہ چاروں طرف اندھیرا ہے اور جناب غم ہے، پریشانیاں ہیں، یہ وظیفہ کرنا شروع کر دے۔ آیت کریمہ بھی اسے کہتے ہیں انشاءاللہ وہ غم دور ہوں گے، وہ اندھیرا چھٹنا شروع ہو جائے گا اور خوشیوں کا اجالا نصیب ہوگا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کیا قرآن پاک یا اس کی آیت کو بغیر وضو دستانے پہن کر چھو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کو یا پھر قرآن مجید کی کسی آیت کو بغیر وضو دستانے پہن کر چھوٹنا جائز نہیں ہے۔ جی جناب، دستانے سمیت بھی بے وضو قرآن پاک کو یا اس کی آیت کو نہیں چھو سکتے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اگر اپنا بچہ کسی کو گود دے دیا تو کیا والدین کی وفات کے بعد اس کو وراثت میں سے حصہ ملے گا؟ دھوم دنیا بھر میں اس چینل نے مچائی ہے، لوگوں نے ایمان کی سے دولت پائی ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا بچہ کسی کو پالنے کے لیے دے دیا تو اصل والدین کی وراثت سے ان کا حصہ معاف نہیں ہو جائے گا، کیونکہ اصل میں اولاد تو نے کہیں ہیں، دوسروں کو فقط پالنے کے لیے دی ہے، اور لہذا شادی کا یا ڈاکومنٹ وغیرہ کے اپنا نام بطور باپ لکھوایا تو یہ حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ جی جناب، جس کا بچہ ہے اسی کے والد کی جگہ اسی کا نام لکھوانا ہے، اور اگر اصل ماں باپ فوت ہوں گے تو بے شک بچہ کسی کو پالنے کے لیے دیا ہے، ترکے کے حصے میں یہ وارث ہے، اس کو حصہ دینا ہوگا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ناظرین، چار سوال ہو گئے ہیں، اب پانچواں سوال ہے، اور یہ وہ سوال ہے کہ جس کا تعلق سلیبس سے تو نہیں ہے مگر ان کو آپشن دیے جائیں گے۔ اسلام میں سب سے پہلا جمعہ کس جگہ پڑھا گیا؟ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ یا بغداد؟ سب سے پہلا جمعہ کس شہر میں پڑھا گیا؟ غور سے جواب دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کا سب سے پہلا جمعہ مدینہ منورہ میں ادا کیا گیا۔ جناب، مدینہ منورہ میں اس کی یاد میں مسجد جمعہ بھی موجود ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ خلفائے راشدین میں سے سب سے پہلے کس نے پولیس کا محکمہ قائم کیا؟ حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عمر فاروق رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین؟ ان تینوں میں سے تو کون تھے جنہوں نے پولیس آج پوری دنیا میں موجود ہے، مگر یہ کام کس نے شروع کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب درست دے دیا ہے۔ جناب، ادھر دونوں ٹیموں کی تیاری تگڑی ہے، پانچوں کے 5 صحیح جواب دیے ہیں، مقابلہ بالکل برابر جا رہا ہے۔ اب نکیال والوں کی باری ہے، اب آپ سے سوال ہوں گے، دیکھیں آپ میں سے کون جواب دیتا ہے اور تحائف حاصل کرتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، نکیال والوں تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ چلے جی، ماشاءاللہ عز و جل۔ ہم مدنی چینل ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں۔ مدنی چینل کا آغاز کس اسلامی تاریخ کو ہوا؟ اسلامی تاریخ بتانی ہے آپ نے۔ 10 رمضان المبارک کو۔ جی ہاں، 10 رمضان المبارک کو مدنی چینل کا آغاز ہوا۔ ان کا جواب بالکل درست ہے، اور ان کو انشاءاللہ عز و جل قبر میں لے جانے والا تحفہ غلاف خانہ کعبہ کے مبارک دھاگے تحفے میں دیے جائیں گے۔ آپ بھی مدنی قافلے کی تاریخ دیں گے؟ ہر مہینے انشاءاللہ 3 دن۔ ارے واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کا تحفہ بھی بڑھا دیا جائے، پھر جو ہر مہینے مدنی قافلے میں جانے والا ان کو مبارک پانیوں کا مجموعہ بھی دے دیں۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کتنی زبانیں جانتے تھے؟ ہاؤ مچ لینگویجز؟ محمد جمیل نکیال سے 7 لاکھ۔ آپ نے کہیں پڑھا ہے؟
جی اسی ذہنی آزمائش میں سنا تھا، پڑھا نہیں۔ جی ہاں، ذہنی آزمائش میں سنا ہے، بالکل صحیح سنا ہے، ان کا جواب بالکل درست ہے۔ دو روایتیں ملتی ہیں، 6 لاکھ زبانیں بھی ہیں اور 7 لاکھ زبانیں بھی ہیں، مگر کمال یہ ہے کہ اگر لاکھوں زبانیں حضرت آدم کو آتی تھیں، ان کے علم کا عالم یہ تھا، تو میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت آدم کے بھی آقا ہیں نا، تو مصطفیٰ کریم کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ تحفہ پیش کریں انہیں بھائی۔ جی ان کو بھی غلاف خانہ کعبہ کے مبارک دھاگے تحفے میں دیے گئے۔ ماشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، کوئی غیب کیا تم سے نگاہوں بنا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہوں بنا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہوں بنا، تم سے نگاہوں بنا، جب نہ خدا ہی چھپا تم سے کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم سے کروڑوں درود۔ آئیے جناب، اب اسکور بورڈ دیکھتے ہیں اور پھر کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے۔ دونوں ٹیموں کے 10 نمبر ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول۔ اشعار سننے سے پہلے آئیے چلتے ہیں کچھ کالز کی طرف، کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام محمد ورحمۃ عزیز اللہ اتاری وبرکاتہ۔ گریس یونان سے عرض کر رہا ہوں۔ حاجی عبدالحبیب بھائی، آپ کا ہمارے یہاں آنا اور بالخصوص ذہنی آزمائش کا یہ سیمی فائنل یہاں ہمارے کروانا، یقین جانیے ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ذہنی آزمائش کی ٹیم کو، مدنی چینل کو، امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ، نگران شورا، تمام اراکین شورا، اللہ تعالیٰ تمام پیار کرنے والوں کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ آپ کا آنا ہمارے لیے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں برکتوں سے نوازے۔ بارک اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بہت شکریہ۔ پہلے تو میں سوچنے لگا کہ کال تو یونان سے آئی ہے اور کہہ رہے ہیں آپ ہمارے یہاں ذہنی آزمائش لے کر آئے ہیں، پھر مجھے سمجھ آیا کہ یہ رہتے یونان میں ہیں کشمیر کے، اور کشمیر کے بہت سارے لوگ یورپ میں رہتے ہیں اور مجھے یورپ کے کئی ملکوں سے بھی میسیجز آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ مجھے کچھ یورپ کے اسلامی بھائی یہاں نظر بھی آئے ہیں، تو بہرحال الحمدللہ ہماری اپنی بھی خواہش تھی، یہاں کے اسلامی بھائیوں کا بھی کہنا تھا، تو آج یہ تجربہ کیا ہے اور اللہ کی رحمت سے اب تک تو بڑا خوشگوار ہے۔ اللہ آگے بھی معاملات کو بہتر رکھے۔ آئیے ناظرین ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش بہت ہی بھی زبردست پروگرام ہے، بہت مزہ آتا ہے دیکھ کر۔ آقا ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کر بہت خوشی سے ہوتی ہے۔ ایک دعوت اسلامی زندہ باد۔ بہت شکریہ جناب۔ عشق کے بول سیگمنٹ میں بڑے پیارے پیارے اشعار دونوں ٹیموں سے پوچھے جائیں گے اور ہمیں بھی سننے کو ملیں گے۔ سوال ہے مانسیرا والوں سے، یہی ہے اصل عالم مادہ ایجاد خلقت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی ہے اصل عالم مادہ ایجاد خلقت کا، یہاں وحدت میں برپا ہے عجب ہنگامہ کثرت کا۔ یہاں وحدت میں برپا ہے عجب ہنگامہ کثرت کا، جواب درست دے دیا ہے۔ الہی منتظر ہوں وہ خرام ناز فرمائیں۔ الہی منتظر ہوں وہ خرام ناز فرمائیں، بچھا رکھا ہے فرش آنکھوں نے کم خواب بصارت کا۔ بچھا رکھا ہے فرش آنکھوں نے کم خواب بصارت کا۔ بڑی پیاری التجا ہے کہ حضور میرے گھر پر تشریف لائیں، میرے خواب میں کرم فرمائیں، بہت عرصہ ہوا پلکیں بچھا کر رکھی ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ یہی ہے اصل عالم مادہ ایجاد خلقت کا، یہی ہے اصل عالم مادہ ایجاد خلقت کا، یہاں وحدت میں برپا ہے عجب ہنگامہ کثرت کا۔ نہاں ہو گئے تابے رخ شہ میں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बू हो के नेहा हो गए ताबे रुख शाह में, लो बन गए हैं अब तो हसीनों का दहन फूल। लो बन गए हैं अब तो हसीनों का दहन फूल। जवाब दुरुस्त दे दिया। जान है इश्क मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा। बड़ा कमाल का शेर है। जल्दी करें। जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। हाय हाय, आला हजरत कहते हैं कि इश्क मुस्तफ़ा जो है ना वो जान है हमारी, रोज फुजू करे खुदा। अल्लाह करे ये बढ़ता रहे, लेकिन जब इश्क बढ़ता है ना तो दर्द भी बढ़ता है। किसी से मोहब्बत हो जाए तो दिल में दर्द होता है। आला हजरत कहते हैं ये दर्द बड़े मजेदार दर्द है ना। कमाल की बात, दर्द और मजा अलग अलग चीज है। जब मजा हो तो दर्द नहीं होता, दर्द हो तो मजा नहीं होता। मगर कहते हैं इश्क रसूल वो है कि जिसका दर्द भी मजा देता है। तो ये दर्द बढ़ता रहे, हमें दवा नहीं चाहिए। जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जाने इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा। जाने इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा। जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। हाय हाय हाय। चले जनाब, अब बारी है मानसेरा वालों की। अब स्क्रीन पर इन्हें कुछ अशार के इशारे दिए जाएंगे। बताइए। गिर्द, पहली लाइन का आखिरी लफ्ज आया है गिर्द। दूसरी लाइन का पहला लफ्ज। दूसरी लाइन का पहला लफ्ज सुनाइए, दिखाइए जनाब। अपनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिसले परवाना फिरा करते थे जिस शमा के गिर्द, अपनी उस शमा को परवाना यहाँ का देखो। क्या कमाल की बात की आला हजरत ने। ये वही कलाम है, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। आप कहते हैं हाजियों जिस शम्मा के गिर्द घूमते थे ना, काबे के गिर्द बहुत परवाना वार फिरे हो, अब देखो ये काबा नबी पाक के दर का तवाफ कैसा करता है। अपनी उस शम्मा को परवाना यहाँ का देखो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मिसले परवाना पिरा करते थे जिस शम्मा के गिर्द, अपनी उस शम्मा को परवाना यहाँ का देखो। अपनी उस शम्मा को परवाना यहाँ का देखो। सुभान अल्लाह। अब बारी जहलम वालों की है, दिखाइए स्क्रीन पर। आंखें। दूसरी लाइन का पहला लफ्ज। दूसरी लाइन का पहला जलते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, रोते हंसा दिए हैं जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं। जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं। बस नबी पाक की निगाहे रहमत पड़ने की देर है, हम ज़दा मुस्कुराने लग जाता है। जहन्नम में जाने वालों को निकाल कर जब शफात फरमा कर जन्नत में दाखिल करते हैं तो जलते बुझ जाते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, जलते बुझा दिए हैं। जनाब स्क्रीन पर फिर शेर दिखाया, इशारा दिया जाएगा। मानसेरा वालों की बारी है। अब तक दोनों टीमों में किसी ने कोई गलती नहीं की है। जी गिरिया, ये दरमियान का लफ्ज है। दूसरे मिसले का पहला लफ्ज। वो पहला लफ्ज बताएं दूसरी लाइन का। नजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदद ए जोश से गिरिया बहा दे कोह और सहरा,
नज़र आ जाए जलवा बेहिजाब उस पाक तुरबत नजर आ जाए जलवा बेहिजाब उस पाक तुरबत का, जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है जनाब, जेलम वालों की बारी है। करे दूसरी लाइन का पहला लफ्ज़। ये हाय हाय बड़ा मुश्किल हो गया जनाब, सिर्फ 2 ही लफ्ज आए हैं, और करे और ये। अल्लाह हमें खाक करे अपनी तलब में, ये खाक तो सरकार से तमगा है हमारा। अल्लाह हमें खाक करे अपनी तलब में, ये खाक तो सरकार से तमगा है हमारा, जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। ये सेगमेंट अभी ज़बानी तो हो गया, स्क्रीन के जरिए भी हो गया, अब तर्ज सुनाई जाएगी। दोनों टीमों को पहचानना है ये कलाम कौन सा है। बारी है मानसेरा वालों की। दोबारा चलाइएगा जी, दोबारा सुनाएंगे, दोबारा सुनाएं। लाज रखना मेरे दस्ते अता कि मेरे मौला तो खैरात दे दे। ये इस पे ये भी कलाम आ सकता है, मुनाजात का है। वैसे तो ये अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब, जवाब इनका दुरुस्त माना जा रहा है। इस तर्ज में जरा एक शेर सुना दीजिए। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ, उनके टुकड़ों से एजाज़ ताजदारों सफ में खड़ा। सुभान अल्लाह जी, जेलम वालों को तर्ज सुनाई जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आया ना होगा इस तरह रंगो शबाब रेत पर, गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। माशाल्लाह, ये भी तर्ज है, लेकिन मशहूर इसकी तर्ज दर से गुलाम आपके सर को उठाएं किस तरह, छोड़ के आपका दिया जाएं तो जाएं किस तरह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दर से गुलाम आपके जाए तो जाए किस तरह, दर से गुलाम आपके सर को उठाए किस तरह, छोड़ के आपका दिया जाए तो जाए किस तरह। जनाब अब बारी आप लोग में से भी कुछ लोग हैं जो शेर सुनाएंगे। रुखसते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, कोई सुनाएगा ये शेर? सोते हैं उनके साए में कोई हमें हाय हाय, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। जवाब दुरुस्त दे दिया। रुखसते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, सोते के साए में कोई हमें जगाए क्यों। माशाल्लाह। चले अब एक तर्ज सुनाई जाएगी नकियाल वालों को। अब आप देखें तर्ज कौन पहचानता है। सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ारत
माशाअल्लाह। सुभान चलो, अल्लाह। तोहफा इन्हें भी पेश करें भाई माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नाजरीन एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मेरा नाम हमनाद तारी है, मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। प्यारे प्यारे अब्दुल हबीब भाई, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। आज मैं आपसे नहनी आजमाइश करूंगी। अच्छा। सेगमेंट है इश्क बोल। आपसे सवाल है, फासिलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, इसका जवाब आपको तर्ज में देना है। आई होप आपका जवाब दुरुस्त होगा। दुआओं की दरख्वास्त है। जज़ाकल्लाहु खैर। चले जनाब, ये हम मुकाबला करते हैं टीमों से और नाजरीन करते हैं हमसे। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। नाजरीन, अब हम देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड जो है वो हमें क्या बता रहा है। दोनों टीमों के 20-20 नंबर हैं। बड़ी अजीम हस्ती कश्मीर की वादियों में जिनके बड़े चाहने वाले, बल्कि दुनिया भर में जिनके चाहने वाले हैं, हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उनका जिक्र खैर होगा। सेगमेंट का नाम है फैजाने मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह। माशाअल्लाह। जो मालिक हर घरदा उस दा नाम चितारण वाला, किस मैदान निगरदा। कमाल के आपके अशार, बड़े कमाल की आपकी बातें। एक एक शेर के अंदर इतना सबक होता है कि बंदा हैरान हो जाता है। बुजुर्गों की, बड़े लोगों की बड़ी बातें। हजरत मियाँ बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह की विलादत किस सन में हुई? मानसेरा वालों से सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह की विलादत 1279 सने हिजरी में हुई। 1279 सने हिजरी में हुई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पीरो मुर्शिद का नाम बताएं। मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पीर मुर्शिद का नाम पीर साईं गुलाम मोहम्मद है। पीर साईं गुलाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह कश्मीर किसके हुक्म पर तशरीफ लाए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपने पीर मुर्शिद के हाथ पे बैत की और उसके बाद आपके पीर मुर्शिद ने आपको हुक्म दिया कि तुम फिलफौर कश्मीर चले जाओ और वहाँ शेख अहमद वलीउल्लाह के पास जो तुम्हारा हिस्सा बातनी महफूज मौजूद है उसे हासिल कर लो। आप अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म पर कश्मीर पीर साहब के हुक्म पर कश्मीर तशरीफ लाए। क्या खूबसूरत बात कही कि तुम फिल फौर कश्मीर में हजरत शेख अहमद वली के पास चले जाओ, वहाँ तुम्हारा बातनी हिस्सा मौजूद है। और फिर यहाँ आए तो क्या अल्लाह पाक ने मर्तबा अता फरमाया? जवाब दुरुस्त दे दिया है। यहाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह का विसाल कब हुआ? आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल 7 ज़ुल्हिज्जा 1324 हिजरी को 1324 हिजरी 7 ज़ुल्हिज्जा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह पाक की मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़ार पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल हो और उनके सदक़े अल्लाह पाक की रहमत से हमारी बख्शिश हो। अब जनाब अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसपे सवाल बड़े ट्विस्टेड होंगे। जब सवाल होते हैं तो बंदा कहता है इसका जवाब क्या होगा, क्योंकि उसका नाम ही सेगमेंट का है फिकही पहेलियाँ। जनाब सवाल है मानसेरा वालों से, किस सूरत में शरई मुसाफिर को 4 रकात फर्ज पढ़ना जरूरी है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसाफिर अगर मुकीम इमाम की इक्तिदा करे तो उसे 4 रकअत नमाज पढ़ना होगी। जनाब मुसाफिर तो जरूर है मगर इमाम मुकीम है, तो इमाम के पीछे जब नमाज पढ़ेगा तो मुसाफिर को भी 4 रकात ही पढ़ना जरूरी है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जहलम वालों से सवाल है, बालिग आदमी रुकू और सुजूद वाली नमाज में ठट्ठा मारकर हंसा और वुजू नहीं टूटा, ये इसकी क्या सूरत है? क्योंकि वैसे तो आप अगर नमाज में कोई बुलंद आवाज से हंस पड़े तो नमाज के साथ साथ वुजू भी चला जाता है, मगर ये कौन सी सूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बालिग आदमी नमाज पढ़ते हुए सो गया तो इस सूरत में अगर वो ठट्ठा मार कर हंसा तो इस सूरत में उसका वजू नहीं टूटेगा। जनाब नमाज पढ़ते हुए सो गया और इसी हालत में ठट्ठा मारकर हंसा तो उस सूरत में वुजू नहीं टूटा, अगरचे रुकू और सुजूद वाली नमाज हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। किन लोगों को फजर की नमाज हमेशा अव्वल वक्त में पढ़ना मुस्तहब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरतों के लिए फ़जर की नमाज अव्वल वक्त में पढ़ना मुस्तहब है। जनाब याद रहे, मर्दों के लिए तो बेहतर यह है कि फजर की नमाज आखिरी वक्त में पढ़ी जाए, मगर औरतों के लिए अफजल यह है कि फजर हमेशा अव्वल वक्त में पढ़ें, ये मुस्तहब है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तो कौन सा नमाजी है कि जिसको 5 वक्ती नमाज में अलहम्द शरीफ पढ़ना हराम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुक्तदी को 5 नमाजों में अल्हम्द शरीफ पढ़ना हराम है। जी जनाब, अगर इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो अब क़याम की हालत में आप सूरह फातिहा नहीं पढ़ेंगे, अब आप खामोश रहेंगे, क्योंकि अब इमाम की जो अलहम्द शरीफ है सूरह फातिहा वो आपकी है, उसमें आप पढ़ेंगे नहीं, ये हराम है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। आप स्कोर बोर्ड देख रहे हैं, बिल्कुल बराबर बराबर, बल्कि कमाल ये है कि एक भी गलती अब तक नहीं की है। इससे अंदाजा हो रहा है कि दोनों टीमें इतनी शानदार तैयारी करके आई हैं। दिखाते हैं आपको स्कोर बोर्ड। जनाब दोनों टीमों के 28 नंबर हैं। जी मदनी चैनल के नाजरीन, आपने देखा दोनों टीमों का स्कोर बोर्ड देखा। अब हम आपको एक चीज़ और दिखाना चाह रहे हैं, देखेंगे यहाँ मौजूद हाजरीन भी देखें और मदनी चैनल के नाजरीन भी देखें। ज़हनी आजमाइश के फाइनल में इंशाल्लाह एक बहुत ही प्यारा कलाम रिलीज़ होने वाला है। वो कलाम क्या है, कहाँ के मनाजिर हैं, आइए देखते हैं स्क्रीन पर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाप जहां बेटे से भागे, बाप जहां बेटे से भागे, लुत्फ वहाँ फरमाते ये है। माशाल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अब्दुल्ला भाई ये बताइए कि ये कलाम भी कि आपने कश्मीर में रिकॉर्ड किया है? हाँ, फील तो ऐसा ही हो रहा है। ये मैंने कलाम जो मुझे याद पड़ता है ये यूके में हमने रिकॉर्ड किया था, और यूके, कश्मीर और यूके, यूरोप ऑलमोस्ट माशा जब यहाँ आते हैं यहाँ के मनाजिर देखते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर यहाँ सहूलियात हों तो ये वहाँ से भी ज़्यादा खूबसूरत जगह है। यहाँ सबसे आसान ये है कि हमें हलाल खाने मिल जाते हैं, यहाँ हमारी मस्जिदें बहुत आसानी से हैं, हमारे अपने लोग हैं। अल्लाह ने पाकिस्तान को, कश्मीर को बहुत सारी खूबियों से नवाजा है, बहुत सारी खूबसूरतियों से नवाजा है। इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा अल्लाह इन हिस्सों को और तरक्की भी अता फरमाए। जनाब माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, जब ये कलाम फाइनल के अंदर बाकायदा रिलीज़ किया जाएगा तो दावत इस्लामी के यूट्यूब पेज नात प्रोडक्शन पर भी आप इसे देख सकते हैं और इसे वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। नात प्रोडक्शन यूट्यूब का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिसपे मुख्तलिफ नात ख्वां जो दावत इस्लामी के उनकी नातें रिलीज़ होती हैं। 31 दिसंबर को रात 9:30 बजे ये कलाम इंशाअल्लाह रिलीज़ किया जाएगा। आइए नाज़रीन, अगला सेगमेंट। जनाब दुरुस्त कीजिए सेगमेंट में हमें कुछ अल्फाज हैं जिसको दुरुस्त करना होता है। ये अल्फाज आगे पीछे कर दिए जाते हैं और 25 सेकंड में इसको दुरुस्त करना है। अगर टीम चाहेगी कि इशारा दें, हम इशारा देंगे, मजीद 25 सेकंड भी मिल जाएंगे, मगर फिर नंबर 1 कम हो जाएगा। बारी है पानसेरा वालों की। जी देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। ज़हनी आज़मा
جی इशारा। ये बड़ी अजीम खातून का नाम है। रोशनी कुरान से फैलाई इन तारों ने, नेमते हिफ्ज़े कुरान पाई हजारों ने, रोशनी कुरान से फैलाई। एक से अस्मा बिन्त उमर। बताइए क्या ये हजरत अस्मा बिन्त उमर नाम है? सही जवाब 1 नंबर दिलाएगा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, एक इशारा लिया इसलिए 1 नंबर मिलेगा। अब बारी जहलम वालों की है। जनाब रोशनी दिल की इनसे सवेरा है, मुफ्तियाने दीन ना हो तो अंधेरा है, रोशनी दिल की इनसे सवेरा है, मुफ्तियाने। बड़ा तवील नाम है जनाब, क्या बताएंगे या इशारा लेंगे? इशारा। ये बहुत अजीम खातून का नाम। बहुत अजीम खातून का नाम। खातून जन्नत फातिमा। पूरा नाम बताए ना जो इसमें नाम है। पहुंच नहीं गए, जल्दी करें दोस्त। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा। नहीं जनाब, आपको नाम पूरा करना है। आप बीबी फातिमा तक सही पहुंचे, मगर ये नाम था फातिमा बिनते खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा। अपनी अम्मी के साथ इनका नाम था और यहाँ आपसे मिस्टेक हो गई जनाब, कोई नंबर नहीं मिलेगा। अब बारी मानसेरा वालों की है। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है, मस्जिदें बनवा के ये आबाद करते हैं, शैतान के मंसूबे ये बर्बाद करते। इमाम नववी। क्या ये इमाम नववी हैं? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। लगता है कुछ थक गए हैं नकियाल वाले, बुलंद आवाज से क्या कहेंगे? ये बात हुई ना जनाब। चले भाई जहलम वालों की बारी है, बताइए जनाब। यहाँ वालों की भी इजाजत है, हाज़रीन भी गौर करें, स्क्रीन देखें, अपनी जहानत का खुद भी इम्तिहान लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम सखावी। क्या ये इमाम सखावी हैं? बताइएगा जनाब। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, 2 नंबर यहाँ भी हासिल कर लिए जनाब। नाजरीन, दावत इस्लामी दुनिया भर में किस तरह दीन मतीन की खिदमत कर रही है। वक्तन फवक्तन आप देख रहे होते हैं, मसाजिद बन रही हैं, मदारिस बन रहे हैं, जामिया बन रहे हैं। सुबहान अल्लाह, मदरी काफिले सफर कर रहे हैं, गैर मुस्लिम मुसलमान हो रहे हैं। इतने सारे दीनी काम आपके सामने, शानदार फैजान मदीना आपके सामने नकियाल की इन वादियों में मौजूद है। कई मंजिला ये मरकज मौजूद है और पीछे इसके मैं अभी जब आ रहा था तो मैंने देखा कि इस्लामी बहनों के लिए भी एक बहुत अजीम शान मरकज बनने जा रहा है। तो इतने सारे कामों के होते हुए दावत इस्लामी ने वेलफेयर डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम FGRF, फैजान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन। उसके भी काम जब शुरू हुए तो दुनिया हैरान रह गई कि इतने थोड़े अरसे में बड़ी बड़ी NGO से बड़े बड़े काम FGRF ने कर दिखाए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक सिंगल NGO ने 60,000 से ज्यादा खून की बोतलें थैलेसीमिया के मरीजों को पेश की हों। 30 लाख से ज्यादा पौधे पाकिस्तान में लगाए जा चुके और नारा है पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। यतीम खाना, मदनी होम ज़ेरे तामीर है और जनाब अब मदनी क्लिनिक बनाए जा रहे हैं, माजूर बच्चों के सेंटर बनाए जा रहे हैं। जहां मुसीबत और आफत आती है FGRF वहां रिएक्ट करती है। जनाब जब पाकिस्तान में सैलाब आया, जबरदस्त सैलाब सिंध और बलूचिस्तान में और जनूबी पंजाब के इलाकों में आया, हमने नियत की कि हम 15,000 घर बनाएंगे। आपको जानकर खुशी होगी हम 5,000 के करीब घर तकरीबन बनाकर हैंड ओवर कर चुके हैं और ये काम अब भी जारी है। मगर उसके साथ साथ तुर्किया और शाम में जलजला आया, वहां जाकर इस्लामी भाइयों ने काम किया और इस वक्त अब फलस्तीन के मुसलमान तकलीफ में हैं। आज मैं आपको FGRF की तुर्की, शाम और फलस्तीन में जो दावत इस्लामी की काविशें हैं, FGRF की काविशें हैं, उसकी कुछ झलकियां दिखाना चाहता हूं। आइए चलते हैं तुर्किया, सीरिया और गजा की उन वादियों में और देखते हैं कि आपकी दावत इस्लामी का डिपार्टमेंट FGRF मुसलमानों की दुनिया के कोने कोने में किस तरह इमदाद कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त हम फैज़ान मदीना गाज़ी पर मौजूद हैं और यहाँ से हमारी इस वक्त रवानगी है तुर्किश कंट्रोल
सीरियन बॉर्डर की तरफ कि जहाँ पे FGRF ने ज़लज़ला ज़ब्दान में भरपूर अंदाज में काम किया है। रहम फरमा मेरे मौला मुझे खुदाया मुआफ कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके हैं उस मकाम पे कि जहाँ से अब हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे। वहाँ जाकर हम उन मकामात का विज़िट करेंगे कि जहाँ पे FGRF ने ऑलरेडी काफ़ी काम किए हैं, जिसके अंदर लोगों में इमदाद तकसीम करना। इसके साथ साथ हमने अंदर एक ऑर्फन एज भी बनाया है, यानी कि यतीम खाना, के जहाँ पे वो बच्चे जो सीरियन बच्चे हैं जो कि यतीम हैं, बेसहारा हैं, उनको रखने के लिए, उनकी तालीम और तरबियत के लिए, उनकी ग़िज़ाई मामलात को हल करने के लिए मुझे खुदाया मुआफ कर दे। इस वक्त हम मौजूद हैं सरजमीन सीरिया। FGRF आपका अपना इदारा जो कि दुनिया भर में आफतज़दा मुसलमानों की इमदाद के लिए हाजिर है। मोरक्को, सीरिया, लीबिया और मुख्तलिफ़ मकामात पर जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हैं कुदरती आफात की वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह FGRF वहाँ पहुँचती है और पहुँच कर अपने मुसलमान भाइयों की इमदाद करती है। मेरा अमल है सियाह नाम मुझे खुदाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उस मकाम पर मौजूद हैं कि जहाँ पे लोगों ने एतमाद करके हमें अपने डोनेशंस दिए। दिल देख के खुश हो रहा है कि ये मदरसे की बिल्डिंग बन रही है, वो उनकी रिहाइश गाह बन रही है और जगह जगह FGRF के बोर्ड लगे हुए हैं माशाअल्लाह से। अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए उनको भी जिन्होंने इस कार्य खैर में हिस्सा लिया, और अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए उनको भी जो इस काम में अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, अपने वसाइल लगा रहे हैं, खुद ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। हमारे UK के डोनर्स जिन्होंने माशाअल्लाह दिल खोल के डोनेट किया। इसके अलावा दुनिया भर में दीगर मुसलमान जो कि इस कार्य खैर में अपना हिस्सा मिलाते हैं। अल्लाह पाक आप सबको खूब बरकत अता फरमाए। मेरे मौला रहम फरमा मेरे मौला मुझे खुदाया मुआफ कर दे। मुझे खुदाया मुआफ कर दे। मेरा अमल है सियाह नाम मुझे खुदाया मुआफ कर दे। मैं जानता हूँ तू बख्श देगा मुझे खुदाया मुआफ कर दे। जी नाज़रीन, आपने देखा गजा में मजलूम मुसलमान जो फ़लस्तीन में हैं उनकी इमदाद जारी है। तुर्किया और शाम के मुसलमानों की इमदाद जारी है। सिंध और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जनूबी पंजाब के सैलाब ज़दगान की इमदाद जारी है। और गरीब व नादार बच्चों के लिए, यतीम बच्चों के लिए यतीम खाने की तामीरात जारी है। तो कौन सी नेकी है जो दावत इस्लामी नहीं कर रही? कौन सी नेकी का मौका है जो हमें दावत इस्लामी के साथ करने का मौका नहीं मिलता? तो क्यों ना अपनी दावत इस्लामी के दस्तो बाजू बने, FGRF का साथ दें और इसको लेकर आगे चलें। नाजरीन, एक और शोबा और जिसमें एक और दुखी यूँ समझिए कि लोग होते हैं, हमारे आंखों के तारे हैं, जिनके पास किसी किस्म की कोई डिसेबिलिटी होती है, जिनको हम नॉर्मली तो माजूर कहते हैं, मगर सच्ची बात है उन्हें स्पेशल कहना चाहिए। आज कुछ स्पेशल बच्चे हमारे पास आए हैं। अभी मैं इनसे मिलने गया था मीरपुर में, कश्मीर में एक बहुत खूबसूरत हमारा मरकज़ है और वहाँ पर नाबीना बच्चों के लिए बाकायदा एक मदरसा बनाया गया, मदरसतुल मदीना बराए जो नाबीना इस्लामी भाई हैं। पहले तो हम उसका आपको एक पैकेज बताते हैं और फिर माशाल्लाह ये बच्चे हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे कुछ सुनेंगे। आपको देखकर कितना अच्छा लगेगा कि इनके पास देख नहीं पा रहे लेकिन ये किस तरह कुरान याद कर रहे हैं और किस तरह दीन मतीन सीख रहे हैं। कई आंख वालों से ज्यादा अच्छे हैं। आइए पहले अब आपको एक छोटा सा वीडियो पैकेज दिखाते हैं, फिर इनसे बात करेंगे। माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं। मोहताजी ना हो मेरे रब किसी
तुझ से बंधी सब हो उम्मीद मेरी, मोहताजी ना हो मेरे रब। عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. معذور ہوں مجبور نہیں، نیکی کی دعوت کی دھوم مچاؤں، کرتا رہوں میں مدد دوسروں کی، پڑھتا رہوں باجماعت نماز، سستی نہ ہو دے دے توفیق ایسی. اس کی ابتداءً جو ہے نا وہ کوشش زیادہ کرنی پڑتی ہے، پھر جیسے ہی یہ آگے چل جاتے ہیں تو پھر یہ بآسانی آگے معمول کے مطابق آ جاتے ہیں. جیسے ایک نارملی بچہ 16 18 20 لائنیں تک یاد کر لیتا ہے تو یہ بھی بآسانی پھر اتنا یاد کر لیتے ہیں. ابتداءً جو ہے نا وہ تھوڑا مشکل ہوتی ہے، یعنی کہ وہ کم سبق یاد کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ناظرہ اور مدنی قاعدہ وغیرہ نہیں پڑھا. رب کسی کی تجھ سے بندھی سب ہو امید میری، محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی، تجھ سے بندھی سب ہو امید میری، معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں، نیکی کی دعوت کی دھوم مچاؤں، کرتا رہوں میں مدد دوسروں کی. ماشاءاللہ یہ کتنی خوبصورت کاوش ہے. ایک شاندار خوبصورت مدرسہ یہ کشمیر میں بنایا گیا. ان کے آرام کا انتظام آپ نے دیکھا، رومز وغیرہ دیکھے. نارملی اس طرح کے لوگوں کو لوگ اتنی توجہ نہیں دیتے، مگر الحمدللہ دعوت اسلامی کی جو مجلس ہے برائے خصوصی اسلامی بھائی وہ زبردست اس پر کام کر رہی ہے. باقاعدہ ان کے لیے بریل لینگویج میں کتابیں بنائی جا رہی ہیں، اشاروں کی زبان میں جو بول نہیں سکتے ان کو سکھایا جاتا ہے. اب میرے سامنے جو نابینا اسلامی بھائی ہیں، مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے قرآن یاد کیا ہے اور میں جہاں سے چاہوں ان سے قرآن پوچھوں یہ قرآن ہمیں پڑھ کر سنائیں گے. اب آپ سوچیں ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے جو آنکھ والے ہیں، قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، یاد کرنا تو دور کی بات ہے. تو آئیے ذرا میں پہلے پارے کی ایک آیت پوچھتا ہوں، دیکھیں ان میں سے کون بتاتا ہے. یہ اس آیت کا اگلی آیت بھی سنائیں گے اور غالباً پچھلی آیت بھی سنائیں گے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. جناب میرا نام محمد تابش عطاری ہے جی، اس کے بعد والی آیت سنائیں گے؟ جی سنائیے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یہ تو میں نے پڑھی نا، اس کے بعد پڑھیں. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسها شيئا ولا يقبل منها عدل ولا منها شفاعة ولا يؤخذها عدل ولا هم ينصرون. چلیں تھوڑی سی غلطی ہے لیکن انہوں نے آیت صحیح پہچان لی ہے ماشاءاللہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے. میں آیت درست پڑھ دیتا ہوں. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ماشاءاللہ، زور سے کہیے سبحان اللہ. چلیں اب میں ایسا کرتا ہوں جناب، چوتھا پارہ کھول لیتا ہوں. اب چوتھے پارے کی میں خود ہی رینڈملی کھول رہا ہوں، دیکھیں کون جواب دیتا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. جی کون سنائیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد توقیر اتاری ہے، میں میر پر نیو مرکز میں پڑھتا ہوں. جی بیٹا اس آیت کے بعد والی آیت سنائیں. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذین اسودت وجوہهم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. سبحان اللہ، جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلیں اب ایسا کرتے 30واں پارہ کھول لیتے ہیں. 30ویں پارے میں دیکھتے ہیں کوئی آیت آگے نکالتے ہیں. فلا اقسم بالخنس.
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तो बहुत ही छोटे हैं भाई जी। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल अत्तारी है। हाय हाय बिलाल, कैसे हो आप? ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी? आयत के आगे सुनाएंगे? फला उक़सिमु बिल खुन्नस अल जवारिल कुन्नस वल लैलि इज़ा असअस वस्सुबहि इज़ा तनफ़्फ़स। सुभान अल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें एक और आयत, एक इस्लाम भाई और भी बाकी है ना, तो उनको भी इंशाल्लाह पूछ लेते हैं। आगे किसी और सूरत में सुनते हैं। फला उक़सिमु बिश्शफ़क़, सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम मोहम्मद दानिश अत्तारी है। माशाल्लाह दानिश, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अब आयत सुनाइए। फला उक़सिमु बिश्शफ़क़ वल लैलि वमा वसक़ वल कमरि इज़ा इत्तसक़। सुभान अल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है, क्या बात है। कहते ना, कोई एक चीज छिन जाती है तो अल्लाह उसके बदले और बहुत कुछ अता फरमा देता है। तो अब इनका जो याद करने का मादा होता है, इनको मेमोरी जो है वो बड़ी कमाल की हो गई है। अब इस मेमोरी को गलत जगह इस्तेमाल कर लें या अच्छी जगह इस्तेमाल करें। अल्लाह इन बच्चों को हाफिज बाअमल बनाए, इनके माँ बाप की आंखों का नूर बनाए। ये है आपकी मेरी दावत इस्लामी। आप भी अगर चाहें कि नाबीना और माजूर इस्लामी भाइयों की खिदमत करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान भर में इनके लिए मदारिस, इनके लिए जामियातुल मदीना, इनके लिए इदारे बनाना चाहते हैं, आप हमारे साथ ताउन कर सकते हैं। ये दर्द शायद वो ज़्यादा महसूस कर सकता है कि जिसके घर में कोई ऐसा बच्चा हो और वो चाहता है कि अब बाकी बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, उनकी तरबियत किया जाए। मैं इनकी मजलिस का भी शुक्रिया अदा करूँगा। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा। एक ये जो हमारे रेड स्वेटर वाले भाई हैं, गालिबन तौकीर नाम बताया था इन्होंने, इनके हाथ में एक ट्रांसिस्टर है, कोई टेप है। सवाल मेरा ये है कि ये याद कैसे करते हैं? पढ़ तो सकते नहीं है, तो कुरान पूरा याद कैसे करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कुरान पाक हम लगाते हैं, यूएसबी में रिकॉर्ड होता है और इसमें एक एक लफ्ज सुनते हैं, फिर उसको याद करते हैं, फिर कारी सबको सुनाते हैं कि दुरुस्त हम पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। नाज़रीन, ये जज्बा हो तो आंखें ना हो तो भी कुरान बंदा पढ़ सकता है। हमारे तो बहाने ही खत्म नहीं होते। मैं बिजी बड़ा होता हूँ तो टाइम नहीं निकलता, तो कारोबार बहुत है, फैमिली का वक्त भी देना पड़ता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह इनके सदके मुझे भी और आपको भी कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। सही साहब, सबको तोहफे पेश जी कीजिए। इंशाल्लाह इन्हें मुबारक पानियों का मजमुआ और सौगात मदीना पेश की जाएंगी सुभान इंशाल्लाह। अल्लाह, इमरान भाई सुभान साथों से इंशाल्लाह। इमरान भाई, चले नाज़रीन, मुकाबला भी चल रहा है और बड़ी रौनक वाली, बड़ी ईमान अफरोज चीजें भी हम देख रहे हैं। जरा हमें एक बार फिर स्कोर बोर्ड दिखाइएगा। रोशनी दिल की इनसे सवेरा है। सुभान अल्लाह। जनाब 30 नंबर जहलम, 31 नंबर है मानसेरा वालों के। अब अगला सेगमेंट है हलाल ओ हराम। जी जनाब, दोनों टीमों से हमने सवाल करने हैं। मानसेरा वालों से हम करेंगे पहला सवाल। इंसान के किसी जुज को बतौर दवा इस्तेमाल करना हराम है या हलाल? इंसान ही के बॉडी पार्ट, इंसान ही के जिस्म के किसी हिस्से को क्या बतौर दवा इस्तेमाल किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान के किसी जुज को बतौर दवा इस्तेमाल करना हराम है। इंसान के किसी जुज को दवा के तौर पर इस्तेमाल करना हराम है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जहलम वालों से सवाल है, लड़कों का कान छिदवाना और उसमें जेवर पहनना कैसा है? लड़कों का कान छिदवाना भी नाजायज और उसमें जेवर पहनाना भी नाजायज। जी, लड़कों के कान छिदवा कर अब उनमें भी जेवर। पता नहीं अब लड़कों को क्या हो गया है, कान की बालियां, अब तो नाक में पता नहीं किधर किधर जेवर पहन रहे हैं। जनाब, मर्दों के लिए जेवर नहीं है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, लड़कों को मना है, तो लड़कियों को कान छिदवाना हलाल है या हराम है? लड़कियों के कान छदवाना भी हलाल है और जेवर पहनना भी हलाल है। जी, लड़कियों के कान छेदना जायज है, कोई हरज नहीं है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब झेलम वालों से सवाल है, मकान में, घर में जी रूह की तस्वीर लगाना कैसा है? लोग कहते हैं मैं अपने बच्चों की तस्वीर लगाऊं, अपने पीर साहब की तस्वीर लगाऊं, बल्कि कुछ लोग तो इतने बेबाक होते हैं कि अपनी शादी की तस्वीर लगाते हैं। मादल्ला, आपके ही घर वालों को बाहर वाले आके देखते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है। बताइए, जीरू की तस्वीर लगाना कैसा? मकान में जीरू की तस्वीर लगाना जायज नहीं है। मकान में जीरू की तस्वीर लगाना
जायज नहीं है, ये बात याद रखिए। घरों में अगर तस्वीरें लगी हुई हैं तो जीरू से मुराद यानी जानदार, तो ये तस्वीरें उतार लीजिए। ऐसे घरों में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। या तो तस्वीर लगाते हैं या मादअल्लाह स्टैचू होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, वो बने हुए, जिसमें जानदार की तस्वीरें होती है, जानदार की छवि बनी हुई होती है, तो इन चीजों को लगाने की भी इजाजत नहीं है। ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ नाजरीन। आइए चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ। जनाब 34 नंबर है झेलम के मानसेरा वाले, 1 नंबर से आगे हैं, उनके हैं 35 नंबर। जी माशाल्लाह। अब्दुल हबीब भाई आपके लिए मैसेज है यूके से। गुड टू सी यू इन कश्मीर, आई एम अवेज फ्रॉम यूके। आई वांट टू आस्क दैट हाउ डिफिकल्ट इज टू मैनेज द लाइव प्रोग्राम इन इवनिंग, हाउ इज योर फीलिंग्स, एंड नेक्स्ट टाइम माय वन एडवाइस इज फॉर यू दैट प्लीज कम इन नीलम। ओके, जज़ाकल्लाह फॉर योर बुला रहे एडवाइस। हैं, और आपका तजर्बा कैसा रहा? हाँ, वो ये पूछ रहे हैं कि आपको कैसा लग रहा है और कैसा डिफिकल्ट है। यकीन करें मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शायद मुझे रात के सिलसिले से ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। नेचर के करीब होकर तो आप और खुश फील करती, अपने अंदर फीलिंग महसूस करते हैं। और माशाल्लाह जिस जज्बे से यहाँ के इस्लाम मैंने तैयारी की है, देखिए ऑल क्रेडिट्स गोज टू हमारी मदनी चैनल की टीम और जो यहाँ के जिम्मेदारान हैं। आप इनके लिए दुआ करें। हमने तो आना होता है, प्रोग्राम करना होता है, मंच सजाना होता है, सजा के तैयार रखते हैं। मैं रात 4 बजे आया, मैं ये ऊपर पहाड़ है, ये मेरी गाड़ी भी नजर आ रही है, हम इस पहाड़ से मैं देख रहा था, मैं उतरा तो यहाँ बाकायदा काम हो रहा था। रात 4 बजे भी इस स्टेज पर काम हो रहा था। मैंने ऊपर से आवाज लगा के पूछा, भाई सब खैर है क्या, तैयारी हो जाएगी? जहाँ ये देखे खड़े ना, मैं यहाँ से खड़े होकर मैंने आवाज लगाई थी इनको, और 4 बजे मैं देख कर गया। और उसके बाद मैं सिलसिला शुरू होने से 10-15 मिनट पहले आया हूँ, तो एवरीथिंग इज रेडी। तो अल्लाह सलामत रखे मदनी चैनल की टीम को, जो कराची से चले हुए हैं, कई दिन हो गए, और आज भी इन्होंने कश्मीर में ये पूरा मंच सजाया। और यकीनन ये यहाँ की इंतजामिया, दावत इस्लामी कश्मीर के जिम्मेदारान और जो हुकूमती इदारे हैं, उसके बगैर नहीं हो सकता। तो जज़ाकल्लाह टू ऑल ऑफ यू। और अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, आपने नीलम की दावत दी है, हो सकता है सीजन 16 हो और नीलम की वादियों में भी हो तो जाए। फिर अगली दफा वालों का तो कश्मीर का तो पक्का है ना? ये तो अब वक्त बताएगा। ये तो अब इस सिलसिले की बरकत से हमें क्या क्या दीनी फवायद यहाँ हासिल होते हैं, अब अगली बार देखेंगे इंशाल्लाह। अभी से वादा कर लेंगे तो फंस जाएंगे भाई। तैयब साहब ने माइक हाथ में लिया है, नियत अच्छी है ना? जी जी, आपका सेगमेंट तो खत्म हो गया, अब हमारा सेगमेंट बाकी है हुजूर। अच्छा जी। एक सेगमेंट आपसे भी करना है जी। करें अब्दुल हबीब भाई के साथ सेगमेंट करें? हाथ उठा के बताएं जरा। खानदानी रिश्ते सेगमेंट है, और इस सेगमेंट में हमने आपसे कुछ पूछना है और आपने इसका जवाब देना है, और यहाँ पर मौजूद हाजरीन को देखना है इनके चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे आती है। सवाल ये है हुजूर, आपके पोते की बहन के वालिद की बहन के भाई की वालदा की सास की बहन से आपका क्या रिश्ता है? अब कश्मीर की वादियों में ढूंढते हैं ना रिश्ते। इतना स्पीड से और इतना तवील रिश्ता बताएंगे, ये तो जरा मुश्किल हो जाएगा। आप आहिस्ता आहिस्ता बोलें। फिर आप जरा मुस्कुराएं। अल्लाह का आपके पोते की बहन के वालिद की बहन के भाई की वालदा की सास की बहन से आपका क्या रिश्ता है? मेरी खाला बनती है। वाह, जवाब दुरुस्त है। वैसे यकीन करें, मैं आज लाइव बड़ी अजीब बात बताने जा रहा हूँ। अपनी कमजोरी लाइव नहीं बतानी चाहिए। मैं रिश्तों में इतना कमजोर था कि मुझे बाज़ औक़ात पूछना पड़ता था कि भांजा किसको कहते हैं या भतीजा किसको कहते हैं। फिर घर वाले बताते थे कि भांजा जो है, अच्छा मैंने पता है कैसे याद किया हुआ था। देखिए मैं अजीब सी बात है लाइव बता देता हूँ। मैं मामू के साथ भांजा याद करता था कि मामू भांजा होता है तो चचा भतीजा होता है। फिर याद आ गया कि भाई का बेटा भतीजा होता है, बहन का बेटा वो भांजा होता है। नवासा और पोते पोतियों में बड़ी मिस्टेक थी। ये बापू ने पूछ के जो है ना मेरा समझ ले रिश्ते इन्होंने पक्के करा दिए हैं। तो उम्मीद है कि चले सेगमेंट माशाल्लाह हमारा ये ख़ानदानी रिश्ते शायद इसीलिए था कि बहुत सारे लोग जो है वो रिश्तों में भी मजबूत हो जाएं। चले जनाब, ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। अब वक्त हुआ है अपने अपने नेक अमाल का जायज़ा करेंगे। बड़ा ज़बरदस्त ये काम है दावत इस्लामी के अंदर, मदनी काफिला और नेक अमाल। नेक अमाल का जायज़ा हमें ये एहसास दिलाता है कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। अगर अभी तक आपने नेक अमाल की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो मोबाइल में डाउनलोड कर लें। इसके रिसाले भी मकतबतुल मदीना पे मिलते हैं। तो इंशाल्लाह नेक अमाल का जायजा होगा, फिर इंशाल्लाह नात खानी होगी। मैं चाहूंगा रियाज बापू भी, सैयद रियाज शाह साहब भी तैयार रहें। इंशाल्लाह वक्त मुनासिब पर मुझे थोड़ा सा कश्मीर दावत इस्लामी के बारे में भी आपसे कुछ ब्रीफिंग लेनी है। आइए जनाब, नेक अमाल का जायजा और उसके बाद नात खानी। जी, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने अपने नेक अमाल के रिसालों को निकाल लीजिए। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन में रिसाला पुर करते हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन को ऑन कर लीजिए। अच्छी नीयतों के साथ इंशाअल्लाहुल करीम नेक अमाल का जायज़ा करेंगे। अच्छी नीयतें की, 5 नमाज़ें बाजमात अदा की,
ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی، رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص پڑھی، کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات مع ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سن لیے، شجرے کے اورات پڑھے، 313 بار درود شریف پڑھے، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں، 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنا جائزہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا یا سنا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلفے رکھنے کی سنت پر عمل ہے، 1 مشت داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق و چاش پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی، 12 دینی کاموں میں سے 1 دینی کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کر دیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درس دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہکہ لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ نعت شریف تو ہوگی، مگر یہ مناظر ایسے ہیں کہ جب بھی ان مناظر کو دیکھتے ہیں تو بے ساختہ رب کی شان بیان کرنے کو جی چاہتا ہے، اللہ کی قدرت کے یہ نظارے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آج عثمان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، 2 اشعار میں خوبصورت حمد باری تعالیٰ کے بھی سنا دیں۔ بڑا پیارا کلام میں نے ان کو عرض کیا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم نعت شریف بھی پڑھیں گے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا خدا
लजपाल नबी मेरे दर्दा दी दवा देना जदों वक्त नज़ार आवे जदों लोकी मदीने नो दिल रोंदा जांदे ने आका जदों लोकी मदीने नो दिल रोंदा जांदे ने जदों लोकी मदीने नो दिल रोंदा जांदे ने जदों लोकी मदीने नो हुण सानू रिया दरबार विखा देना हुण सानू रिया दरबार विखा देना जदों वेखा कोई मुसाफिर जांदा शहर तेरे नो किवें वगदे हुए अंजुआन उठाना या रसूल अल्लाह दिल रोंदा जांदे ने जदों लोकी मदीने नो हुण सानू रिया दरबार विखा देना मैनू मजबूरियां ते दूरियां ने मारिया सदलो मदीने आका करो मेहरबानियां टाटा गरीब आका खोल मेरे नहीं उठ के मैं दिखे आवा नाल मेरे पर नहीं असी भी तेरा ते तो बड़ी दूर नाले सगलो मदीने आका करो मेहरबानियां दिल रोंदा जांदे ने जदों लोकी मदीने नो हुण सानू रिया दरबार विखा देना हमसे फकीर भी अब तेरी को उठते होंगे अब तो गनी कदर पर बिस्तर बिछा दिए गए बड़ी गली है मजबूर हो गए तुम्हारे दर से बहुत दूर हो गए हैं हमें शौक में हो मदीने में घूमने आए दियारे पाक की दीवार चूमने आए अगर हुजूर के रोजे दीद हो जाए कसम खुदा की हम गरीबों की ईद हो जाए दिल रोंदा जांदे ने जदों लोकी मदीने नो हुण सानू रिया दरबार विखा देना हुण सानू रिया
जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को मदीना दिखा दे तो क्या बात है। दिल रोना चाहे ने जदोलों की मदीने नूर सानो यागा दरबार विखा देना, नूर सानो यागा दरबार विखा देना। जिंदगी चाहिए तो मदीने चलो, गर खुशी चाहिए तो मदीने चलो। सारी बस्ती मदीने की गलियों में है, कैफ सारे का सारा मदीने में है। दिल रोना चाहे ने जदोलों की मदीने नूर सानो यागा दरबार विखा देना, नूर सानो यागा दरबार विखा देना। सरकार दिल में फिर विच जोलियां पिया बैठे, सरकार दिल में फिर विच जोलियां पिया बैठे। लज रख लज पाला पाला लज रख लज पाला, खाली ना उठा देना। लज रख लज पाला, खाली ना उठा देना। सीधी तमन्नाएं रवे आके मदीने विच, सीधी तमन्नाएं रवे आके मदीने विच। बावे बर्बाद होते आगे तेरा बिठा देना। बावे बर्बाद होते आगे तेरा बिठा देना। लजपाल नबी मेरे दरदादी दवा देना। जो वक्त नज़ावे दामन अल्लाह करीम हम सबको भी हरमैन तैयबैन की बार बार हाज़िरी नसीब फरमाए। जो तड़प रहे हैं, जो मचल रहे हैं, जिनके दिल रो रहे हैं, अल्लाह इन मुबारक घड़ियों के सदके हमें जल्द मक्के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। हमारे साथ कश्मीर के हमारे ज़िम्मेदार मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि उनसे चंद मिनटों में ज़रा मालूम करें कि दावत इस्लामी यूँ तो दुनिया भर में खिदमत कर रही है, ज़रा बताइए कि कश्मीर में दावत इस्लामी के शोबाजात की कैफियत क्या है और किन किन कामों में दावत इस्लामी या मसरूफ़ अमल है। जी सब अल्लाह पाक की रहमत से जहाँ दावत इस्लामी का दीनी काम दुनिया भर में जारी व सारी है, वहाँ अमीर अहले सुन्नत की निगाह करम से, निगाह फैज़ से कश्मीर में भी दावत इस्लामी के दीनी कामों की बहारें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हिस्सा दावत इस्लामी के जामिअतुल मदीना बॉयज़, ये पूरे कश्मीर में इनकी तादाद 21 है। जामिअतुल मदीना गर्ल्स इनकी तादाद 18 है।
मदारिसुल मदीना बॉयज़ ये 112 से ज़ायद है और मदारिसुल मदीना गर्ल्स ये भी 40 से ज़ायद है। इसी तरह फैज़ान मदीना दावत इस्लामी के मदनी मरकज़ ये 32 इस वक्त कश्मीर में बन चुके हैं। इसी तरह जो मसाजिद हैं जिनमें दावत इस्लामी के इस्लामी भाई इमामत कर रहे हैं इनकी तादाद 500 से ज़ायद है। इसी तरह इस्लाह बराए कैदियान के शोबे के तहत तमाम जेलों में दावत इस्लामी के तहत दीनी काम हो रहा है। फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी भी कायम है, दारुल मदीना 2 कायम है, फैज़ान इस्लामिक स्कूल सिस्टम भी कायम है। इसी तरह नाबीना बच्चों का मदरसा भी अल्हम्दुलिल्लाह ये कश्मीर में इस वक्त चल रहा है। यानी कुल मिला के सब तकरीबन 750 इदारे मसाजिद दावत इस्लामी के हवाले से काम कर रहे हैं। क्या बात है नाज़रीन, ये है आपकी दावत इस्लामी सिर्फ कश्मीर में 750 इदारे बना चुकी है। फिर क्यों ना हम अपनी दावत इस्लामी का साथ दें। नाज़रीन आइए देखते स्कोर बोर्ड। जनाब 34 नंबर है जहलम, 35 नंबर है मानसेरा। कश्मीर के इस्लामी भाइयों को एक खुशखबरी भी दे देता हूँ, अगले सेगमेंट के बाद इंशाल्लाह हमारा आज जो सेगमेंट है उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग, उसमें इंशाल्लाह मैंने कश्मीरी ज़बान में कुछ मदनी फूल भी पेश करने हैं और हमने आपके लिए कश्मीरी ज़बान में एक बड़ी प्यारी नात भी तैयार की है इंशाल्लाह। आइए चलते हैं हमारे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है ये मुकद्दस मकाम कौन सा है। जनाब अब गौर से देख रहे हैं मुकद्दस मकामा दोनों टीमों ने और फिर इन्हीं के बारे में इनसे सवाल होगा। चले जनाब दिखाइए। मज़ार मुबारक इमाम शाफई रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हजरत शाह रुकने आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार शरीफ, मज़ार मुबारक बाबा साईं कमला बादशाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह कश्मीर पाकिस्तान, मज़ार मुबारक काजी मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाहि तआला अलैह कश्मीर पाकिस्तान, मज़ार मुबारक मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह कश्मीर, मज़ार मुबारक बाबा रस्मी बादशाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह कश्मीर, मज़ार मुबारक पीर सैयद नेक आलम शाह बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह कश्मीर, मज़ार मुबारक मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह फैसलाबाद, मज़ार मुबारक हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु सुभान अल्लाह, मज़ार मुबारक हजरत उकबा बिन आमिर रदी अल्लाह तआला अन्हु मिस्र, मज़ार मुबारक दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह लाहौर पाकिस्तान। जनाब कुछ मज़ारात बड़ी तेजी से दिखाए गए हैं, अब इन्हें पहचानना होगा। थोड़ा सा हिस्सा दिखाया जाएगा, जितने इशारे लेते जाएंगे नंबर कम होते जाएंगे। बारी है मानसेरा वालों की जी। जनाब कुछ थोड़ा सा नजर आ रहा है, कोई इशारा लेना चाहे तो इशारा ले ले। 6 नंबर खोलिए। 6 नंबर खोलिए जनाब, अकलमंदी इसी में है क्योंकि गलत जवाब कोई नंबर नहीं दिलाएगा। शाह रुकने आलम। क्या ये शाह रुकने आलम का मज़ार है? बताइए। काजी मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाहि तआला अलैह कश्मीर। गलती हो गई है जनाब, कोई नंबर नहीं मिलेगा मानसेरा वालों को। अब बारी झेलम वालों की है, जल्दबाजी न करें। छह नंबर जी 6 नंबर खोलिए। जनाब कंफ्यूजन है तो और भी खुलवा ले। 5 नंबर भी खोलें जनाब। जनाब कुछ लिखा हुआ भी नजर आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक आलम शाह बुखारी। क्या ये हजरत नेक आलम शाह बुखारी का मज़ार है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 2 इशारे लिए हैं तो 3 नंबर इन्हें दिए जाएंगे। फिर बारी है मानसेरा वालों की। जी
मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह। कोई इशारा नहीं लिया, अगर सही जवाब है तो 5 नंबर मिलेंगे वरना कोई नंबर नहीं मिलेगा। बताइए जनाब। मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह 5 नंबर हासिल कर लिए हैं। बड़ी जरूरत थी मानसेरा वालों को नंबर की, अब बारी झेलम वालों की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ार मुबारक इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अल्लाहु अकबर। इन्होंने भी कोई इशारा नहीं लिया, गलती इन्हें 5 नंबर से महरूम कर सकती है। क्या ये जवाब दुरुस्त है? इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। जहलम वालों ने भी 5 नंबर हासिल किए हैं। अब 2 नंबर से जहलम की टीम आगे है, मगर वक्त हुआ है आखिरी सेगमेंट करने से पहले। हमारा सेगमेंट है उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग। आज मैं कश्मीरी जबान में बैठने की सुन्नतें और आदाब बयान करूंगा, जरा गौर से सुनिएगा। बैजे निया सुनता ते आदाब, सोने सोने इस्लामी परारो ते मदनी चैनल देखने आलियो। अजे ना सेगमेंट उम्मत ने रंग ज़हनी आजमाइश ने संग विच असाने आखिरी नबी हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ओ उम्मती जेड़े दुनिया ने कुसे भी कोने विच या कुसे भी मुल्के विच रहने ते कश्मीरी बोलने या समझने, उन्हां नी खुशी ते दिल जोई निया गल्ला, उन्हां नी अपनी जबान कश्मीरी विच बैजे निया सुन्नता ते आदाब बयान करने नी कोशिश करसा। इस दौरानिए विच माड़े कोला कोई गलती होई जानी ते माफ करिया। मदनी चैनल देखने वाले हो, अगर अस अल्लाह ने सोने नबी अलैहिस्सलाम निया सुन्नता ऊपर अमल कराते अच्छी नीयत ने वस्ते सवाब ने हकदार भी होने और कमे विच बरकत भी होसी। इसे गल्ला साड़ा हर कम सुन्नत ने मुताबिक होना चाहिए। साढ़े सोने सोने आका अलैहिस्सलाम अक्सर काबिले चेहरा करी ते दो जानू बैजने होने सन। इन्हां कोला 4 जानू मतलब के पालती मारी ते बेजना भी साबित दा। उन्हां की काबे ने सहन विच इख्तिबा निया सूरत विच बैजनिया भी देखिया गया। इख्तिबाना मतलब योदा कि बंदा सुरीन ने सहारे ऊपर बैजे ते अपनिया दोए पिंडलियां दोए हथे ने हल्के विच हैनी छोड़े। इस तरह बैजना आजजी ते इनकिसारी विच शामिल दा। ऐजिया जगह अपर ना बैजा कि अद्धा जिसम तोपे विच ते अद्धा छावा विच बे, किया के छाव ठंडी ते तुप गरम दी और इक्के वक्त विच जिसमें की ठंडी ते गर्मी भी पहुंचे, यो सेहत वास्ते नुकसान देदा। जदू इज्तिमा या मजलिस विच अच्छा थे, लोकी की टप्पे कोला जिथे जगह लब्बे ते उत्थे बैजी अच्छा, रस्ते विच भी बैजे कोला बचा, कबरे ऊपर भी ना बैजा। पीर साहब उस्ताद साहब ते बुजुर्गी निया कुर्सियां ऊपर बैजना भी अदब ने खिलाफ दा। बुजुर्गे ने सामने जदू भी बैजा ते दोजानू बैजा। किताबा पढ़ने ने वक्त जिक्र और दुरूद वगैरह ने मवाके ऊपर अपना मुंह काबे ले मोड़े नी आदत बना। बयान करने आले ते दर्स देने आले बयान ते दर्स ने दौरान सुन्नत योदी कि उन्ना नी कंड किबले लेवे, ताकि उना कूला इल्म निया गल्ला सीखने आले ना चेहरा किबले लेवे। खाना खानिया खब्बा पैर लिटाई ते सज्जा गुट्टा खड़ा करा। इस तरह करने किनी तिल्ली निया बीमारियां कोला बची एलिया। रान ते पट्ठे भी मजबूत होसियां। खाना खाने सुरीन ऊपर बैजा ते दुए गोडे खड़े रखा। इस तरह जेड़ी जरूरत दी ओ खाना पैटे विच गेसिया, जिसनिया वजह थू बीमारियां कोला दूर होलियां। या खाने खाने ने वेले दुए पैरा निया पुश्ते ऊपर दो जानू हुई ते बैजा। खाना खाने ने वेले 4 जानू बेजे कोला बचना चाहिना। हिकमत ए आखरी के चोकड़ी मारी खाना खाने नी आदत वेते बंदा मोटा हुई आइना ते तोंद भी निकली ऐनी। बकरी बकरा ते मेंढे निया चमड़ियां ऊपर बैजने किने मिजाज विच नरमी ते आजी पैदा हुई ऐनी। दरिंदे निया खाला ऊपर ना बैजिया, इस कने मिजाज विच सख्ती ते तकब्बुर पैदा हुई ऐना। अल्लाह पाक असी की इना सुनता ते आदाब ऊपर अमल करने नी तौफीक दे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इंशाअल्लाह कश्मीरी ज़बान में एक बड़ा प्यारा कलाम है, मुझे खुद भी ये कलाम बड़ा पसंद आया जब इसके अशार हमने पढ़े। मैं चाहूँगा, तर्ज बहुत आसान है, सब मिल के पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जिसकी
जिसने टुकड़े ज़हरा मिला उस जा कोई सैर निलबिया फिर ज़माना तकी दुनिया मदीने वर्गा शहर निलबिया छोड़ो असावी छोड़ो असावी गल को नालो अज तक लोड़ हो नालो अज तक लोड़ हो सोना पैरा नाजरीन, वक्त हुआ है आखिरी सेगमेंट का। फैसला कर देगा कि आज के इस नकियाल में होने वाले सेमीफाइनल से कौन सी टीम जा रही है फाइनल में, मानसेरा या जहलम। और सेगमेंट का नाम है, सब मिलकर कहेंगे जोश के साथ, जनाब ये दोनों सेगमेंट है और इसकी तरफ हमने जाना है। हस्बे मामूल मेरे पास बहुत खूबसूरत रसाइल पैकेज आ गए हैं और ये बड़े प्यारे पैकेज हैं। हर सिलसिले में ऐलान करते हैं मकतबतुल मदीना के इसमें रसाइल हैं, 9 रसाइल है और 150 रुपए हदिया है। ये किसी का जाती कारोबार नहीं, नफा नुकसान मकतबतुल मदीना का है, मगर हम एक दूसरे को बहुत सारे गिफ्ट देते हैं। ये बड़ा प्यारा गिफ्ट है। यहाँ मौजूद इतनी बड़ी तादाद में इस्लामी भाई हैं, लेकर जाइए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को तकसीम कीजिए, खुद भी पढ़िए और इसकी बरकतें हासिल कीजिए। ये तो ले जाएंगे हुजूर, वहाँ पर बस्ता लगा हुआ माशाल्लाह, बस्ते से तो ले लेंगे, लेकिन ये आपके पास तो इतने सारे, अगर आपसे कोई लेना चाहे और आप इस पर दम कर दें तो क्या बात है। चले जनाब, अगर ये वाले कोई लेना चाहता है मैं दम भी कर देता हूँ दुरूद शरीफ पढ़ के। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अच्छा, ये वाले अगर रसाइल सैयद साहब से रब्ता कर ले तो 112 खुद ही खरीदे इसके पैकेट और अपने रिश्तेदारों दोस्तों में बांट दें। हमें नहीं चाहिए, आप ले जाएं साथ और इसको तकसीम करें। तो जो लेना चाहे वो सैयद साहब को मैं दे रहा हूँ, इनसे ले लें और फिर इंशाल्लाह रियाज बापू के हाथों से इंशाल्लाह ले लेंगे। चले जनाब, आखिरी सेगमेंट है
पहले बेल चेक करवाएं मानसेरा वाले जी। चले जनाब, अब इसके बाद जहलम वाले चेक करवाएंगे। चले जनाब, याद रहे सही जवाब पर 2 नंबर मिलेंगे, गलत जवाब दिया या बैल बजाई जवाब ना दिया 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। सवाल करने जा रहा हूं, बाज लोग बैल बजाई है, मानसेरा वालों ने सिर्फ लफ्ज़े बाज लोग सुना है। ये कैसे सवाल पूरा करेंगे और कैसे जवाब देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ लोग जब मुसाफा करते हैं तो उसके बाद अपने सीने पर हाथ रखते हैं, तो उनका ऐसा करना कैसा? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? बाज़ लोग जब मुसाफा करते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखते हैं और ऐसा करने में कोई शरई ममानियत भी नहीं है और मुसलमानों में ये राइज भी है, तो ऐसा करना बिल्कुल जायज़ है। सवाल भी दुरुस्त है, जवाब भी दुरुस्त दे दिया है। जनाब मुकाबला बराबर हो गया है, दोनों टीमों के 42-42 नंबर है। और अब शेर की बारी है। तड़पा बेल बजाई है जनाब, जेलम वालों ने लफ्ज सिर्फ तड़पा सुना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तड़पा करें बदल के फिर आना, कहाँ नसीब बेहुक्म कब मजाल परिंदे को पर की है। बेहुक्म कब मजाल परिंदे को पर की है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब सवाल की बारी है जनाब, सवाल करूंगा मैं, जनाब नहीं सवाल है। अगर कोई फिर बेल बजाई है, मानसेरा वालों ने सिर्फ लफ्ज अगर कोई सुना है, सवाल कैसे पूरा करेंगे, जवाब कैसे देंगे? जोश के साथ, इतना होश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल यह है कि अगर कोई अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त में तौबा करे तो क्या उसकी तौबा कबूल हो जाएगी? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? अगर ज़िंदगी के आखिरी वक्त से मुराद ये है कि किसी को सज़ाए मौत दी जाने वाली है और उससे पहले तौबा करे तो उसकी तौबा गुनाह से भी तौबा करेगा तो कबूल होगी और कुफर से तौबा करेगा भी तो कबूल होगी। अगर इसकी मुराद ये है कि किसी की रूह हलक में अटकी हुई है और वो उस वक्त तौबा करे और उसे फरिश्ते उस वक्त दिखाई दे रहे हो, तो उस वक्त उसकी कुफर से तौबा कबूल नहीं होगी, जबकि गुनाह से तौबा कबूल होगी। क्योंकि ईमान का मतलब ईमान बिलगैब है, उस वक्त तो फरिश्ते नज़र आ रहे होंगे, इस वजह से तौबा गुनाहों से तौबा कबूल होगी, कुफर से तौबा कबूल नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जिंदगी में तौबा कर लेनी चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल और बड़ा प्यारा जवाब दिया इन्होंने, मगर ये सवाल नहीं था। सवाल था अगर कोई अपना अजीज और करीबी रिश्तेदार फौत हो जाए तो ताज़ियत कैसे की जाए। जवाब है ताज़ियत में गम खारी होती है। ताज़ियत करने वाला सुन्नत की नीयत करे कि ताज़ियत करना सुन्नत है, फिर घर के तमाम अफराद से ताज़ियत करे। मगर हमारे यहाँ सिर्फ उससे ताज़ियत की जाती है जो घर का बड़ा होता है। हालांकि मसला यह है कि एक एक फर्द से ताज़ियत की जाए। 2 नंबर माइनस हो जाएंगे जनाब। जोश जरूर दिखाइए मगर होश साथ चाहिए जनाब। अब शेर है सिया, फिर बैल बजाई है। मानसेरा वालों ने लफ्ज़े सिया सिर्फ सुना है, ये पूरा शेर ने पूरा करना होगा। पूरा आज तक मुझे सवाल करने ही नहीं देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियाह लिबासाने दुनिया कब्ज़ पोशाने अर्श आला, हरे कि उनके करम का प्यासा ये फैज उनकी जनाब, ये फैज उनकी जनाब में है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब फर्क 2 नंबर का रह गया जनाब। अब मैं सवाल करने जा रहा हूं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, बैल बजाई है जहलम वालों ने। जी सिर्फ हजरत यूनुस सुना है। ये क्या सवाल है और क्या जवाब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत यूनुस मछली के पेट से निकलकर आपको किस की तरफ नबी बनाकर भेजा गया? जवाब दीजिए। यूनुस जब मछली के पेट से निकले तो आपको पहले की तरह मोsul की सरजमीन पर मकामी नैनवा के 1 लाख या कुछ इससे कुछ ज़्यादा आदमी की तरफ नबी बनाकर भेजा। वो पहले ही अज़ाब इलाही की देखकर तौबा कर चुके थे, फिर आप पर बाकायदा ईमान लाए और अल्लाह पाक ने उनको आखिरी उम्र तक सच के साथ रखा। हाय हाय, हजरत यूनुस सुना, बैल बजाई। मुझे लगा ये सवाल सही बताएंगे। सवाल ये था हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर कैसे तशरीफ लाए और अल्लाह पाक ने आपकी हिफाजत का क्या इंतजाम किया। जवाब ये हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो अल्लाह पाक ने उन्हें मछली के पेट से निकालकर मैदान में डाल दिया। और मछली के पेट में रहने की वजह से आप कमजोर, दुबले, पतले और नाजुक हो गए थे। अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत और साए के लिए कद्दू का पेड़ उगा दिया और अल्लाह ताला के हुक्म से रोजाना एक बकरी आती, आपको सुबह शाम दूध पिला जाती, यहाँ तक कि आपके जिस्म में तवानाई आ गई। गलती हो गई है। 2 नंबर माइनस। इसका मतलब ये हुआ नाजरीन,
सेमी फाइनल फिर हमारी सांसों को बेरब्त करेगा। दोनों टीमों के 42 नंबर हैं, यहां से कोई भी टीम आगे जा सकती है फाइनल के लिए, इस्लामाबाद के लिए। अब शेर मैंने पढ़ना है, मैंने उसकी दूसरी लाइन पढ़नी है, ठीक है? तू रहीम है। बैल किसने बजाई है? जहलम वालों ने जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अगरचे गुनाह हैं हद से सवा, मगर उनसे उम्मीद है तुझसे रजा। तू रहीम है, उनका करम है गवाह, वो करीम है तेरी अता की कसम। तू रहीम है, उनका करम है गवाह, वो करीम है तेरी अता की कसम। जवाब दुरुस्त दे दिया। 2 नंबर से जहलम वाले आगे हैं। अब मेरे पास नाजरीन 2 सवाल हैं और 2 अशार हैं, इसी में फैसला हो जाना है। इस टीम ने आगे जाना है। सवाल, हजरते अल्लाह, सिर्फ मानसेरा वालों ने हजरते पे बैल बजा दी है। अब ये कौन से हजरत है और उन हजरत का कौन सा सवाल है? ये बड़ा खतरनाक मरहला है जनाब। अब तो नसीब ही आगे पहुंचाए। इतनी जल्दी करते हैं जनाब जी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मुकम्मल नाम और अलक़ाबात क्या हैं? चलें जवाब दीजिए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम यूनुस बिन मत्ता है और आपका अलक़ाबात ज़ुन्नून और साहिबुल हूत हैं। सवाल ये नहीं था, सवाल था हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को खतीबुल अंबिया क्यों कहा जाता है? आपका इसमें गिरामी शुएब है, आपको खतीबुल अंबिया कहा जाता है। इमाम तिरमिज़ी लिखते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब हजरत शुएब का तस्करा करते तो फरमाते वो खतीबुल अंबिया थे, क्योंकि उन्होंने अपनी कौम को इंतहाई अहसन तरीके से दावत दी और दावत देने में लुत्फ़ व मेहरबानी और नरमी को बतौर ख़ास पेश नज़र रखा। नाज़रीन, अब 4 नंबर का फ़र्क हो गया है और मेरे पास 2 अशार हैं, 1 सवाल है। अब शेर मैंने नहीं पढ़ना है, अब इनको तर्ज सुनाई जाएगी और उस तर्ज से इन्होंने पहचानना है जी। अल्लाह, पूरी तर्ज भी नहीं सुनी है, ये कैसे कलाम पहचानेंगे? तर्ज तो पूरी सुन लेते। वाह क्या जूद व करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनते ही नहीं मांगने वाला तेरा। चले जरा पहले तर्ज सुनते हैं। नहीं, ये शुरू तो यहीं से हुआ था, अगर ये पूरी तर्ज सुन लेते तो शायद पहुंच जाते। ये गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। यहाँ कुछ हालात बदल रहे हैं नाजरीन, गलती हुई है। ऐसा ही है ना, ये वाक़या जूदो करम इस तर्ज में नहीं आएगा, नातख़्वाह इस्लाम में भी कह रहे नहीं आएगा, तो ये 2 नंबर मजीद माइनस हो गए नाजरीन। अब बारी सवाल की है, लोगों से किस अंदाज में जनाब बैल बजाई है जहलम वालों ने? लोगों से किस अंदाज में बात करनी चाहिए? जवाब दीजिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं हमें हुक्म दिया गया है कि लोगों से उनकी अक्लों के मुताबिक सवाल, लोगों से उनकी अक्लों के मुताबिक कलाम करना चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आखिरी शेर है, ना दौलत दे ना सरवत दे। बैल बजा दी है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न दौलत दे न सरवत दे, मुझे बस ये सादत दे, तेरे कदमों में मर जाऊं मैं रो रो कर। तेरे कदमों में मर जाऊं मैं रो रो कर मदीने में। जहलम वाले सेमीफाइनल जीत गए हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि इस्लामाबाद में होने वाला फाइनल अब जहलम और गुजरावाला वालों के दरमियान होगा। कमाल की टीम मानसेरा की, बहुत अच्छा मुकाबला किया, मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। हमारे नाजरीन की क्या राय थी ज़हनी आजमाइश की क्विज एप्लीकेशन में? मानसेरा या खैबर पख्तूनख्वा, ओए होए बिल्कुल बराबर बराबर ही था और वाकई बड़ा क्लोज था, लेकिन जहलम वाले आगे निकल गए। आज हम ये जो हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड है, ये हमारे शफीक भाई जो जहलम के हैं उनको पेश कर रहे हैं। शफीक भाई माशाल्लाह तशरीफ लाए, बड़ा शानदार जवाब देते हैं ये, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। और मैं गुजारिश करूंगा मानसेरा के इस्लामी भाइयों को रियाज शाह साहब ऊपर आएँ और इनको तोहफे पेश करें, ये गमज़दा हैं। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि ज़हनी आजमाइश का फाइनल 31 दिसंबर जिना कन्वेंशन सेंटर में किस टीम का किसके साथ होने जा रहा है।
ذہنی آزمائش سیزن 15 میں پری کوارٹر، کوارٹر فائنل، سیمی فائنل کے بعد اب ٹیمز پہنچ چکی ہیں فائنل کے مقابلے میں۔ تو پھر ہونے جا رہا ہے 31 دسمبر 2023 بروز اتوار رات 8:30 بجے براہ راست جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد سے گرینڈ فینالے کمپٹیشن، جس میں ہوں گی گجرانوالہ اور جہلم کی ٹیمز آمنے سامنے۔ دیکھتے ہیں جیت کا تاج سجتا ہے کس کے سر۔ اسلام آباد و اطراف کے عاشقان رسول اس گرینڈ فینالے میں بھرپور شرکت فرمائیں۔ ایک سوال جو اگلے پروگرام سے پہلے آپ نے دینا ہے، اسلام کا ستون کس شخصیت کو کہا گیا؟ اسلام کا ستون کس شخصیت کو کہا گیا؟ میسج کر کے اگلے پروگرام سے پہلے آپ نے جواب دینا ہے۔ نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حق درود تم بھیجے تم مدام اس کو سرا کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ ازکو فیض سے اعظم گنج بخشے فیض عالم صدقہ امام اعظم صدقہ فاروق اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا الہی صدقہ آل و اصحاب رسول یہ سلام عاجزانہ ماشاءاللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا